سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ سلیم اور میں ہوں تنصیر زیدی۔ ہیڈ لائنز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، نیوز اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے مافیا حکومت گرانے کے لیے فوج کو دعوت دے رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ حکومت گرا دو، ان کی چوریاں سامنے آ رہی ہیں، اس لیے حکومت گرانے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر جگہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جن کے خاتمے کے لیے جدوجہد جاری ہے۔ لوگوں کو تاثر دیا گیا کہ بٹن دباتے ہی نیا پاکستان سامنے آئے، اقتدار میں آئے تو کہنا شروع ہو گئے کہاں ہے نیا پاکستان۔ جب سارے خوشحال ملک دیکھ لیں، جو بھی ملک خوشحال ہے وہاں قانون کی حکمرانی ہے، وہاں طاقتور قانون کے نیچے ہے، وہاں کوئی چینی مافیا نہیں پھر رہا، کوئی قبضے مافیا نہیں ہے، وہاں کوئی پولیٹیکل مافیاز نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی ہمیں NRO دیں نہیں تو ہم گورنمنٹ گرا دیں گے۔ فوج کو بلا رہے ہیں کہ فوج آگے گورنمنٹ گرا دے، اپنے آپ کو ڈیموکریٹک موومنٹ کہتے ہیں، فوج کو کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ گرا دو، کیونکہ ان کا ساروں کا مقصد اپنے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا ہے۔ یہ سارے جو مافیاز ہیں یہ اپنے مفادات کی حفاظت کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ تیار ہیں گورنمنٹ گرانے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں ان کے اربوں اربوں ڈالر، ڈر لگا ہوا ہے کہ یہ گورنمنٹ آئے گی تو پیسے ان سے واپس آ جائیں گے۔ ان کی ساری چوریاں سامنے آ رہی ہیں۔ آج آپ وزیر اعظم عمران خان نے سڑکوں کے حوالے سے بھی گفتگو کی، انہوں نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں۔ جو حکومت اپنے آپ کو کہتی تھی کہ وہ سڑکیں بنا رہی ہے، تو اس سے آپ نے یہ ثابت کیا کہ اور بھی بہت کام کر سکتے ہیں سڑکوں بنانے کے علاوہ، لیکن سڑکیں بھی ہم نے 3 گنا زیادہ بنائی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب۔ میڈم بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ وزیر اعظم عمران صاحب نے تو آج بیان دیا ہے، ہم دیکھتے آئے ہیں کہ وہ سڑکیں بنانے کے خلاف تھے، لیکن آج انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ہمارے دور میں زیادہ سڑکیں بنائی گئی جس کی وجہ سے ترقی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب وہ مجھے تو ان کی ذہنی کیفیت کے اوپر شک ہونے لگ گیا جب وہ تقریر کرتے ہیں، کیونکہ ترقی کی شرح میں اضافہ 5.8% سے پہلے سال 1.9%، دوسرے سال منفی 0.5% اور پھر 2 ہفتے میں فوراً بجٹ کے قریب 3.9%۔ تو اگر وہ 3.9% کا جھوٹ بھی ان کا دیکھ لیا جائے جو ابھی بجٹ میں 11 تاریخ کو سامنے آئے گا، تب بھی 5.8% ترقی کی شرح تھی وہاں نہیں پہنچے۔ تو یہ مجھے نہیں پتا کیا جھوٹ سمجھ کے بولتے ہیں کہ عوام پاگل ہے، اصل میں یہ اس غریب عوام اور پاکستانی عوام کا مذاق اڑاتے ہیں ایسی اسٹیٹمنٹ سے۔ دوسری بات جو سڑکوں کی اس وقت تو کہتے تھے کہ سڑکیں یہ اس لیے بناتے ہیں کیونکہ اس میں سے یہ کمیشن کھاتے ہیں اور پھر یہ چوری کرتے ہیں اور پھر یہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور ہماری سڑکیں آج وہ سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں کہ ہم نے سب سے زیادہ سڑکیں بنائی ہیں، کہ دماغی طور پر ٹھیک ہے؟ 1400 کلومیٹر کی سڑکیں نواز شریف نے بنائی، پاکستان کا پہلا موٹر وے بنایا، گلگت سے لے کر خنجراب تک جو سڑکوں کا جال بچھایا، یہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے۔ لیکن اس سے زیادہ خطرناک بات جو عمران خان صاحب نے آج کی، فوج کے ادارے کو سیاست میں گھسیٹا۔ کون کہہ رہا ہے فوج کو کہ جمہوری اور فوج کو کیوں کوئی کہے گا کہ جمہوری حکومت گرائیں؟ یہ آج اتنا بڑا ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے عمران خان صاحب نے کہ فوج کو کہا جا رہا ہے کہ جمہوری حکومت گرائی جائے۔ یہ کس قسم کا الزام لگایا جا رہا ہے؟ اور اب ادارے کے خلاف کون بات کر رہا ہے؟ ادارے کو متنازع کون بنا رہا ہے؟ ادارے کو سیاست میں کون گھسیٹ رہا ہے؟ عمران خان صاحب کا یہ بیان ادارے کو سیاست میں گھسیٹنا اور یہ کہنا کہ کوئی فوج کو کہہ رہا ہے کہ یہ کیا امپلائی کرتا ہے؟ یہ کس چیز کی نشاندہی عمران صاحب کر رہے ہیں؟ اس کا جواب عمران صاحب کو کلیریفیکیشن میں دینا پڑے گا، اور یہ پاکستان کی عوام آج دیکھ رہی ہے کہ کون کیا بات کر رہا ہے۔ یہ ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے جو 24 گھنٹے میں سے 24 گھنٹے تو جھوٹ بولتا ہی ہے، اور جھوٹ بول کے عوام کا مذاق اڑا کے کل جب پری بجٹ سیمینار ہوا، آپ سب کی سکرینز میں دکھایا کہ رات کو 8 بجے کوئی وزیر ان کے جھوٹوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ٹی وی پہ آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پوری کی پوری کابینہ، پورے کے پورے وزراء، پوری کی پوری وزیر خزانہ کے ترجمان سب مفرور ہیں، گمشدہ ہیں پری بجٹ سیمینار کے بعد، کیونکہ ہم نے وہاں عوام کو حقائق ان کے فگر، اسٹیٹ بینک کا فگر، پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کا فگر، حکومت کا فگر دے کر ان کو چیلنج کیا کہ اس میں سے کوئی اعداد و شمار چیلنج کرے حکومت اور آ کے جواب دے۔ پوری کی پوری ٹیم جو ہے وہ فرار ہے، مفرور ہے۔ جی ٹھیک ہے مریم اورنگزیب صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔
एक बार फिर से आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि माफिया हुकूमत गिराने के लिए फौज को दावत दे रहा है। कहा जा रहा है कि हुकूमत गिरा दो, इनकी चोरियां सामने आ रही हैं, इसलिए हुकूमत गिराने के लिए दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि हर जगह माफियाज बैठे हैं जिनके खात्मे के लिए जद्दोजहद जारी है। लोगों को तासुर दिया गया कि बटन दबाते ही नया पाकिस्तान सामने आए, इक़्तिदार में आए तो कहना शुरू हो गए कहाँ है नया पाकिस्तान। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीब से खिताब के दौरान जो अपोजिशन है उसको भी तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि माफिया हुकूमत गिराने के लिए फौज को दावत दे रहा है और कहा जा रहा है कि हुकूमत गिरा दो, इनकी चोरियां सामने आ रही हैं, इसलिए हुकूमत गिराने के लिए दबाव डाला जा रहा है। हर जगह माफिया बैठे हुए हैं जिनके खात्मे के लिए जिद्दोजहद जारी है। लोगों को तासुर दिया गया कि बटन दबाते ही नया पाकिस्तान सामने आए, इक़्तिदार में आए तो कहना शुरू हो गए कि कहाँ है नया पाकिस्तान। ये तमाम तर गुफ्तगू की वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने खिताब के दौरान। उनका कहना है कि ये कहते हैं कि NRO दे दो नहीं तो हुकूमत गिरा देंगे, वो फौज को बुला रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से बयान दिया गया, फौज को बुला रहे हैं कि हुकूमत गिरा दे। इमरान खान ने तनकीद का निशाना बनाया अपोजिशन को। उनका कहना है कि हर जगह माफियाज बैठे हुए हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो हुकूमत गिराने की धमकियां देते हैं। और आपको अहम खबर से आगाह करेंगे, कराची में कोरोना की भारतीय किस्म तेजी से फैलने लगी। कराची में भारतीय कोरोना के 48 केसेस की तस्दीक हो गई है। जी बिल्कुल, 48 केसेस की तस्दीक हो चुकी है और ये भारतीय किस्म है वायरस की जो कि तेजी से फैल रही है कराची में। और इस हवाले से आपको बताएं कि भारतीय कोरोना बहुत तेजी से दूसरों में मुंतकिल होता है। कफायत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। कफायत अली शाह, 48 केसेस अब रिपोर्ट हो चुके हैं, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये जो है वो अहम खबर है कि जो अभी फ़्लाइट आई है कुछ रोज़ पहले, लेकिन उसमें तस्दीक हुई है टेस्टिंग के बाद कि ये जो 48 केसेस हैं इंडियन वेरिएंट उनमें पाया गया है। इनमें जो ज़्यादातर केसेस हैं वो कराची के हैं और कराची के डिस्ट्रिक्ट साउथ और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जो है वो ज़्यादा बड़ी तादाद है। 12 अफराद जो हैं जो कि जिनको ट्रेस किया गया था उनका ताल्लुक जो है वो डिस्ट्रिक्ट साउथ से है, जबकि 9 अफराद जो हैं उनमें कराची के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से ताल्लुक है। इसी तरीके से 3 केसेस जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में भी हैं और लाड़काना में कुछ केसेस हैं, इसके साथ साथ हैदराबाद में कुछ केसेस हैं और सिंध के दीगर हिस्सों से भी केसेस हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं कि जो कि मुल्क के दीगर इलाकों में भी हैं, लेकिन वो कराची आए हैं तो लिहाजा उनकी यहाँ पर टेस्टिंग हुई है, जिसके बाद जो है वो ये इंडियन वेरिएंट का कोरोना केसेस जो है वो ये सामने आया है। टेस्ट में ये बात सामने आई है। कुछ रोज़ पहले भी हमने ये चीज़ बताई थी कि 4 मुसाफिर जो है वो मुख्तलिफ जगहों से यहाँ पे पहुँचे थे और उनमें जो है वो टेस्टिंग के बाद ट्रेसिंग भी की गई और उसके बाद उनमें जो है वो इंडियन वेरिएंट जो है वो सामने आया था। और एक जो खातून मस्कत से आई थी उसकी घर में जब वो शिफ्ट हुई हैं उनमें कोरोना पॉजिटिव आ गया था इंडियन वेरिएंट, लेकिन उसकी उस ट्रांसमिशन जो है वो बेटी में हुई खातून की, तो वो बेटी 22 साल बेटी भी जो है वो भी इससे मुतासिर हुई थी। ये एक और तशवीशनाक बात है कि इतनी बड़ी तादाद में आज जो है वो इंडियन वेरिएंट के केसेस जो है वो सामने आए हैं। 24 न्यूज़ ने जो है वो इससे पहले भी इंडियन वेरिएंट की खबर दी थी और आज भी जो है ये बहुत बड़ी खबर है कि 48 अफराद जो है एक ही दिन में जो है रिपोर्ट हुए हैं और इनमें से ज़्यादातर अफराद जो हैं वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों से हैं और डिस्ट्रिक्ट साउथ में ज़्यादा बड़ी तादाद मौजूद है। लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बाहर से आए हैं और बैरून मुल्क से और उनको जो है वो ट्रेस किया जा रहा है। कुछ की ट्रेसिंग हो चुकी है, जबकि इसके साथ साथ जो 48 केसेज जो है वो कन्फर्म हुए हैं, इसके साथ साथ बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जिनके टेस्ट किए गए हैं, उनकी सैम्पलिंग की गई है, उनके रिश्तेदारों से जो है वो सैंपल्स लिए गए हैं और वो उनकी जो रिपोर्ट है वो भी जल्द यहाँ सामने आने की जो है वो उम्मीद है कि जैसी वो आएगी वो हम फिर आपको नाज़रीन को आगाह करेंगे। लेकिन अभी जो है वो बड़ी खबर ये है कि 48 अफराद जो हैं वो इनमें इंडियन कोरोना वायरस जो है वेरिएंट जो है वो पाया गया है। जी ठीक है, कफायत अली शाह हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। जिला जनूबी से हमारे साथ मौजूद है फैसल खान। फैसल खान, बताइएगा जिला जनूबी में क्या सूरत हाल है इस भारतीय वेरिएंट की? देखिए, इंतहाई तशवीशनाक और सूरत हाल है, जिसमें सबसे ज़्यादा केसेस जो रिपोर्ट हुए कराची में 48 में से ज़िला साउथ में जनूबी में यहाँ पर हुए हैं और इधर साउथ में भी जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो DHA में के रिहायशी हैं जो यहाँ पर कोरोना वायरस जिनमें इंडियन वेरिएंट जो है रिपोर्ट हुआ है। इसके साथ दूसरे नंबर पे जो इलाका सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ वो ईस्ट का था,
जहां पर ये केसेस रिपोर्ट हुए, इसी तरह कोरंगी में। गुज़िश्ता रोज़ भी वज़ीर सेहत की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें बताया गया था कि सबसे बड़ी वजह इस कोरोना फैलने की यह है कि लोग वैक्सीनेशन करने में कतरा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मुख्तलिफ अफवाहें हैं जिसकी वजह से वैक्सीनेशन का जो अमल जितनी तेज़ी से होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। इस वक्त भी कराची में 11% केसेस कोरोना के रिपोर्ट हो रहे हैं, जो शरह है वो 11% है। तो एक ये ख़तरनाक सूरत हाल है, तशवीशनाक सूरत हाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोरोना शुरू में आया था तो उसके बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से और सिंध हुकूमत की जानिब से जोर दिया गया था कि एयरपोर्ट पे ही जो है उनके वैक्सीनेशन, उनके टेस्ट किए जाएं और उनके टेस्ट के बाद उनको करंटीना करा जाए 2 से 3 दिन के लिए। वो ख़त्म कर दिया गया। ताहम अब ये हो रहा है कि जब वो घर पहुंच जाते हैं उसके बाद वो दूसरों को ट्रांसमिट कर देते हैं, उसके बाद पता चलता है जी ये कोरोना का केस इनमें हो गया। और अब ये इंडियन वेरिएंट जो है वो इंतहाई ख़तरनाक है और ऐसी सूरत हाल में 48 केसेस निकलना इंतहाई तशवीशनाक है। इसका एक ही हल वज़ीर सेहत की जानिब से भी बताया गया, महकमा सेहत के भी जानिब से बताया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करें, क्योंकि वैक्सीनेशन होगी, ये ज़्यादा वैक्सीनेशन होगी तो इसको रोका जा सकता है, वरना सूरत हाल तशवीशनाक हो सकती है। जी ठीक है, फैसल खान हमारे साथ मौजूद थे, कफ़ात अली शाह भी हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आइंदा बजट में कारसाज कंपनीज की मनमानियां खत्म करने की तजवीज़ सामने आई है। ज़राए के मुताबिक सार्फिन को मुकर्ररा वक्त पर गाड़ी ना देने पर कार कंपनीज पर जुर्माने की तजवीज़ सामने आ गई है। आइंदा बजट में गाड़ियों की ऑनलाइन बुकिंग की शर्त लाजमी करार देने की तजवीज़ दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आइंदा बजट में कारसाज कंपनीज की मनमानियां खत्म करने की तजवीज़ है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि सार्फिन को मुकर्ररा वक्त पर गाड़ी ना देने पर कार कंपनीज पर जुर्माने की तजवीज़ सामने आ गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं, वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास अजीम, मज़ीद क्या तजावीज़ पेश की गई हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में कारसाज कंपनियों की मनमानियां खत्म करने की तजावीज़ तैयार कर ली है और ज़राए का ये कहना है कि आइंदा बजट में सारिफिन को मुकर्ररा वक्त पर गाड़ी ना देने पर कार कंपनियों पर जुर्माने लगाने की तजवीज़ सामने आई है। और इस सिलसिले में वज़ारत सनअत और पैदावार के हुकाम का ये कहना है कि ऐसी कारसाज कंपनियां जो कि सारिफिन को 60 रोज में गाड़ी फराहम नहीं करेंगी, उनके ऊपर कायबोर जमा 3% जुर्माना आयद कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ इस बात को भी यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी कि कारसाज कंपनियों को सारिफिन जल्द अज जल्द तक उन तक गाड़ी फराहम करें। आइंदा बजट में ये भी तजवीज़ दी गई है कि गाड़ियों की ऑनलाइन बुकिंग की शर्त को कारसाज कंपनी के लिए लाजमी करार दिया जाएगा। और जो तजावीज़ सामने आई हैं वज़ारत सनअत और पैदावार की जानिब से, इसके ऊपर FBR ने भी इत्तफाक किया है और ये कहा है कि सारिफिन की जानिब से बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही है कि अगर कोई सारिफ अपनी गाड़ी बुक कराता है और एडवांस पेमेंट भी जमा करा देता है तो 6 महीने बल्कि 9 महीने तक उनकी गाड़ी उनको फराहम नहीं की जाती। इसलिए ये फैसला किया जा रहा है कि आइंदा बजट में ऐसी कारसाज कंपनियां जो कि सार्फिन को गाड़ी फराहम नहीं करेंगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी और जुर्माने भी लगाए जाएंगे, जिसकी शरह कायबोर जमा 3% बताई गई है। और 60 रोज के अंदर अंदर तमाम कारसाज कंपनियों को अपने सार्फिन तक गाड़ी फराहम करना लाजमी हो। ठीक है, ये तमाम तर तजावीज़ सामने आई हैं। बहुत शुक्रिया वकास आपका। और खेल के मैदान से आपको अपडेट करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया। मोहम्मद अब्बास और नसीम शाह दोबारा कौमी टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बन गए। लेग स्पिनर यासिर शाह की टेस्ट स्क्वाड में शमूलियत फिटनेस से मशरूत कर दी गई है। हारिस सोहेल, अमाद वसीम की वनडे और T20 स्क्वाड में वापसी हो गई। आजम खान को भी T20 स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। सलमान अली आगा पहली मरतबा कौमी वनडे स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं, जबकि बाबर आजम तीनों फॉर्मेट में कौमी टीम की क़यादत भी करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, कौमी क्रिकेट टीम के दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है। मोहम्मद अब्बास और नसीम शाह दोबारा कौमी टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बन गए हैं। लेग स्पिनर यासिर शाह की टेस्ट स्क्वाड में शमूलियत फिटनेस से मशरूत है। जबकि लाहौर में ज़िले इंतजामिया की नाहिली सामने आई है। कोरोना आगाही मुहिम के फ्लैक्सेस पर मरहूम अदाकार काजी वाजिद की तस्वीर लगा दी। कमिश्नर लाहौर कैप्टन उस्मान ने नोटिस लेते हुए फौरी फ्लैक्सेस हटाने का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से आपको बता रहे हैं, लाहौर में ये जो है इंतजामिया की गफलत देखने में आई है। इस पर हमारे साथ मौजूद हैं अली अकबर, उनसे मजीद डिटेल्स लेंगे। अली अकबर, ये क्या मामला है?
جی بالکل، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی اگر بات کریں تو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جانب سے ان دنوں جو ہے وہ شہریوں میں کورونا ویکسین کی اگائی کے لیے جو ہے وہ زیادہ طور پر مہم چلائی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے فنکار جو قومی ہیروز ہیں انہیں نہ صرف ویکسین لگائی جا رہی ہے بلکہ ان کا ویکسین لگوانے کے حوالے سے جو ہے وہ پراپر میسج کمپین بھی چلائی جا رہی ہے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جو ہمارے قومی ہیرو ہیں سردار سے واجد جو کہ 2018 میں انتقال کر چکے ہیں، قاضی واجد کی فلیکس لگائی گئی ہے اور باقاعدہ طور پر اس لیے یہ ضرور کیا گیا ہے کہ انہوں نے کورونا ویکسین لگوا لی ہے۔ عوامی گہری مہم تھی، اس سلسلے میں بتایا یہ گیا ہے کہ کمشنر لاہور نے باقاعدہ طور پر نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پہ اس غلطی کو رموو کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ علی اکبر، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، جب محافظ ہی راہزن بن جائے تو تحفظ کون دے گا؟ یہ سوال پیدا ہوا پولیس ریکارڈ سے پیدا ہونے والے اس انکشاف کے بعد کہ شہر میں بڑی بینک ڈکیتیوں اور جیولر شاپ کے لوٹنے کی وارداتوں کے پیچھے نجی سیکیورٹی گارڈ ملوث ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ جس پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ کو محافظ سمجھ کر سیکیورٹی پر مامور کیا جاتا ہے وہی نقصان دینا شروع کر دیتا ہے۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق شہر میں ہونے والی بیشتر بینک ڈکیتیوں اور جیولر شاپ کو لوٹنے کی وارداتوں میں پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ ملوث پائے گئے ہیں۔ ملک بھر میں پارا چنار اور لاچی گروپ سب سے زیادہ متحرک ہے۔ 50 افراد پر مشتمل یہ گروپ پہلے اپنے کارندوں کو سیکیورٹی کمپنی میں بھرتی کراتا ہے، پھر اس کی ڈیوٹی آسان ٹارگٹ پر لگوا کر کارروائی کی جاتی ہے۔ سیکیورٹی کمپنی مالک کہتے ہیں جرائم میں ملوث افراد کے خلاف پولیس کے ساتھ مل کر کارروائی کی جاتی ہے۔ جب کوئی جرم ہوتا ہے یا کوئی FIR کرتی ہے تو پولیس اس وقت ہم سے رابطہ کرتی ہے۔ ویسے کبھی کبھار جو انٹیلیجنس جو والے جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں ہمارے پاس، گارڈوں کی لسٹیں لے جاتے ہیں، لوکیشن پہ جو ہمارے گارڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی ڈیٹیل وہ سب لے جاتے ہیں۔ پولیس نے گزشتہ 10 سالوں میں جرائم میں ملوث 198 سیکیورٹی گارڈز کو گرفتار کیا، جن میں 54 کو عدالتوں سے سزائیں کرائی گئی ہیں۔ سردی ہو، گرمی ہو، خزاں ہو یا بہار، پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی کے یہ گارڈ لمبی لمبی ڈیوٹیاں دے کر رزق حلال کمانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ان کے ادارے میں موجود چند کالی بھیڑوں نے انہیں اور ان کے ادارے کو بدنام کیا ہوا ہے۔ کیمرامین فرحان احمد کے ساتھ سہیل شبیر، 24 نیوز، کراچی۔ کراچی میں اناری گارڈ سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن گئے۔ بیشتر سیکیورٹی گارڈز کو اسلحہ چلانا نہیں آتا۔ اس بارے میں دیکھتے ہیں سولت جعفری کی رپورٹ۔ نائی کسان ہو یا کسائی، ہر ایک کے ہاتھ میں سیکیورٹی کمپنیز نے بندوق تھمائی۔ اندرون ملک سمیت شہر کے مختلف علاقوں سے آئے یہ نا تجربے کار سیکیورٹی گارڈز کیا آپ کی اور ہماری حفاظت کر سکتے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے۔ سیکیورٹی گارڈ نے بتایا کہ کمپنی برائے نام ٹریننگ دیتی ہے، ہمیں ملزمان کو دیکھ کر گولی چلانے کے آرڈرز نہیں ہیں۔ 4 سال ہو گئے۔ اس سے پہلے گاؤں میں کیا کرتے ہیں؟ گاؤں میں کھیتی باڑی، ٹریننگ 2 دن کی دی ہے۔ کمپنی کی طرف سے الاؤ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مگر ہم جو ہے اپنے بچا کے لیے پاؤں میں یا ویسے فائر کر سکتے ہیں۔ شہری بھی اناڑی سیکیورٹی گارڈ سے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ اناڑی سیکیورٹی گارڈ آدھی رات کو بیٹھ کے سو رہے ہوتے ہیں جب سیکیورٹی کا ٹائم ہوتا ہے، آدھی رات کو بیچارے 4 ساس پی کے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو سیکیورٹی گارڈ ہیں بٹ کیا کریں، سیکیورٹی کسی کام کی نہیں کرتے وہ۔ ان لوگ تو 2 لفظ بولو تو ان لوگ ایک دم ہائپر ہو جاتے، چڑھ جاتے لوگ کے اوپر، ایسا یہ ہاتھا بائی کریں گے۔ یہ ویسے روڈ پہ کھڑے رہتے ہیں بس، تو کچھ آتا وغیرہ نہیں ہے۔ کل ہماری طرف سے یہ حادثہ ہوا ہے، غلطی سے فائر ہوئی ہم سے مارکیٹ میں 11:30 کی طرف، تو ٹریننگ ہی نہیں ہے کچھ۔ نا تجربے کار سیکیورٹی گارڈز نہ صرف اپنے آپ کے لیے خطرہ پیدا کرتے ہیں بلکہ عوام کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ متعلقہ اداروں کو پابند کرے کہ تمام تر سیکیورٹی کمپنیز کے گارڈز کا دوران ڈیوٹی امتحان لیا جائے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹا جا سکے۔ کیمرامین ساجد علی کے ساتھ سولت جعفری، 24 نیوز، کراچی۔ شہر قائد میں جرائم کی شرح میں اضافے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ناقص کارکردگی کے بعد پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز کے کاروبار کو 4 چاند لگ گئے، مگر سیکیورٹی کے نام پر بنائی گئی کمپنیز تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہیں۔ ماضی میں بیشتر سیکیورٹی گارڈز ہی جرائم کی وارداتوں میں ملوث نکلے۔ پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز کو کتنا عرصہ ٹریننگ دی جاتی ہے اور انہیں کیا مسائل درپیش ہیں، یہ بتا رہے ہیں دانیال سید اپنی اس رپورٹ میں۔ کراچی میں سیکیورٹی کے مسائل بڑھنے کے بعد سیکیورٹی کمپنیز کا کاروبار بھی زور پکڑنے لگا۔ یہ سیکیورٹی کمپنیز اپنے سیکیورٹی گارڈز کو کیا مراعات دیتی ہیں اور کتنے عرصے ان کی تربیت کی جاتی ہے، جانتے ہیں انہی سیکیورٹی گارڈ سے۔ ہماری کمپنی میں جو ہے نا 15,000 سپاہی کو جو ہے سیلری دیتے ہیں۔ 3 دن کی ٹریننگ ہوئی ہے
पता नहीं आज रखेंगे ड्यूटी पे या नहीं रखेंगे। 12 घंटा आपकी ड्यूटी होगी और 15,000 रुपये आपको मिलेगा। लोकेशन में आप पता नहीं है आज लगेंगे कल लगेंगे ये मालूम नहीं है। अभी आए हैं वेरिफिकेशन कराएंगे, इधर चेक होगा समझिए, ये पता नहीं है लोकेशन शाम को देंगे सुबह देंगे ये मालूमात नहीं है। 15 से 17,000 में 16 घंटे से जायद की नौकरी करने वाले ये सिक्योरिटी गार्ड फ़कत 3 दिन की सिक्योरिटी तरबियत हासिल करने के बाद शहरियों की हिफाजत के लिए मैदान में उतार दिए जाते हैं। क्या ये सिक्योरिटी गार्ड बेहतर अंदाज में सिक्योरिटी फराहम कर सकते हैं? फैसला आप खुद करें। कैमरामैन कयूम शेख के साथ दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। इसी हवाले से मजीद बात करें। कराची में शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स तहफ़्फ़ुज़ करने के अहल नहीं। सिक्योरिटी गार्ड्स की जिस्मानी फिटनेस, ज़हनी हालत और टेक्निक पर कई सवाल उठे हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स अहल क्यों नहीं, ये जानते हैं कामरान जलील से, जो कि इस वक्त ऑल पाकिस्तान सिक्योरिटी कंपनी एसोसिएशन के चेयरमैन के साथ मौजूद हैं। कामरान, बताइएगा। कराची में सिक्योरिटी गार्ड्स के हवाले से जो कराची के अवाम हैं उनको बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसीज एसोसिएशन के चेयरमैन मेजर मोहम्मद मुनीर। इनसे हम जानेंगे कि कराची में कितनी सिक्योरिटी कंपनीज हैं जो शहर में रजिस्टर्ड काम कर रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो ऑपरेटिंग लाइसेंस इशू किए हुए सिक्योरिटी कंपनीज को तकरीबन 270 हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो सारी फ़ाल हैं या वो काम कर रही हैं। प्रॉब्लम हमारा ये है कि यहाँ पे हर बंदा गार्ड तो लेना चाहता है और लेना भी चाहता है 6 फुट का मूँछों वाला वगैरह वगैरह, लेकिन जब वो पैसे देने की बारी आती है तो पैसे नहीं देता। जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो अहम मकामात पर मौजूद होते हैं उनकी हालत भी इसी तरह की होती है कि उनके पास एक रिपीटर गन होता है, उसमें 2 कारतूस डले होते हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल आते हैं, आसानी से उसको हिट करते हैं, उनका वेपन भी छीनते हैं और आसानी से फरार होकर कामयाब होते हैं। सिक्योरिटी कंपनी जहाँ जहाँ गार्ड खड़ा है वो देते क्या हैं? हर जो वेपन है उसके ऊपर 10 राउंड होते हैं जो कि नॉर्मली उनके पाउच के अंदर उन्होंने रखे होते हैं। अच्छा, इनकी भर्ती के हवाले से मेजर साहब बताइएगा कि इनकी भर्ती का क्या अमल है? 18 या 20 साल की उम्र से ज़्यादा होता है उसको हम भर्ती करते हैं। उसकी ज़ाहिर उसकी जो फिज़ीक एट्सेट्रा देख के। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, इनका कहना यह है कि कराची में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, वो भी काम कर रही हैं। उसके हवाले से ये जो एसोसिएशन है वो मुताल्लिका इदारों को लिख कर दे देती है। अब कार्रवाई के हवाले से अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो वो इन इदारों का फेलियर है। कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के शहरियों का कहना है कि शहर में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स गैर तरबियत याफ्ता है और उन्हें असलहा चलाना भी नहीं आता। मजीद शहरियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं शहरियों की ज़ुबानी। प्रॉपर जो है इनको ट्रेनिंग दी जाए हर किस्म की असले की चलाने की, रखने की और इस्तेमाल करने की। ठीक है, ये लोग आते हैं मजबूरी के तहत जॉब पे, इनको ना असला चलाना आता है, ना पकड़ने का तरीका है, ना कुछ। 15,000 रुपये तनख्वाह होती है। 15,000 रुपये में कौन जान दे सकता है? कोई भी जान नहीं दे सकता। बस वो सिक्योरिटी कंपनियां जो हैं वो नाजायज़ इनको भी भर्ती करती है और नाजायज़ जिस इदारों को ये सिक्योरिटी देते हैं उसके साथ भी नाजायज़ किया जाता है। ये बेचारे मजबूरन जाके सैलानी वाले खाने खाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड की तरतीब की इसको क्या ज़रूरत है? इसको जब सैलरी पूरा मिलेगा तो जाके बर्दाश्त करेगा और मुकाबला भी करेंगे, ट्रेनिंग भी करेंगे। अब ये खाने के पीछे भाग दौड़ करे या सैलरी के पीछे। बात करेंगे बजट के हवाले से, तो बजट करीब आते ही हुकूमती इत्तेहादी अपने मुतालिबात मनवाने के लिए सरगर्म हो गए। MQM ने बजट से पहले मुतालिबात वज़ीर आज़म के सामने रखने का फैसला कर लिया। MQM का वफ्द मुतालिबात की फहरिस्त के साथ आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। JDA, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और काफ लीग भी वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगी। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अवैस कियानी, बताइएगा ज़राए की जानिब से क्या बता रहा है कि कौन कौन से मुतालिबात हैं जो पेश किए जाएंगे? असद उमर परवेज़ खट्टक को जो टास्क सौंपा गया था उसके बाद उन्होंने अपनी सिफारिशात की हैं और आज जो है इत्तेहादी जो हैं उनमें सबसे पहले MQM जो हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत जो है क़यादत आज वो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे, अपने मुतालबात की फहरिस्त उनके सामने रखेंगे और जो सिंध के हवाले से और वफाक से के हवाले से जो उनके साथ किए गए जो वादे थे उन पर बात होगी। लेकिन हमारे ज़राए बता रहे हैं कि JDA, काफ लीग और बलोचिस्तान अवामी पार्टी और जो इत्तेहादी हैं उनकी भी जो है जल्द मुलाकातें जो है मुतवक्के हैं और उनके साथ जो वादे किए गए थे खुसूसी तौर पर जब तहरीक अदम एतमाद और सेनेट
बजट के इलेक्शन थे उस वक्त जो इनके साथ जो वादे हुए थे उन पर बात हुई होगी, और आगे जो इलेक्शन जो बजट आ रहा है उसकी मंजूरी के लिए जो है वो हमायत ली जाएगी। लेकिन हमारे ज़राए ये भी बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने इनके लिए जो है एक बड़े खाने का भी एहतमाम जो है वो किया है, जो कि बजट से पहले जो है इनके लिए दिया जाएगा। लेकिन अब वज़ीर आज़म भी इन सब की जो है वो हमायत हासिल कर रहे हैं ताकि जो बजट का एक जो मार्का है वो सर हो सके। लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी आज अपने मुतालबात रखेंगे, और जो उनके साथ जो MQM के हवाले से जो एक वजारत की बात की जा रही थी और दीगर जो उनके जो कराची का जो मसाइल हैं और जो है, और इसके साथ जो जितने भी इत्तेहादी हैं उनके जो कंसर्न हैं खुसूसी तौर पर जो ठीक है, इसी हवाले से आज मुलाकातें की जाएंगी। बहुत शुक्रिया वैस कहनी आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।